Mr. Krishna Bairegowda took this initiative to organize this meeting, and we all 8 states agree to the proposal that we should put forward our case before the union government. That is, all the affecting states, in fact, all the states are being affected by this GST rationalization. Although we do agree to the proposal that should be rationalized, but we should be compensated as well. Before starting this GST regime, our tax growth was at the rate of 16%, which reduced now to 5 to 7% slab. So we are not being compensated enough, and that is affecting our social welfare schemes as well as our local developmental schemes, overall infrastructure developmental programs. तो ये तो एक बात है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए. दूसरा है कि जो GST rationalization है, that should not result into profiteering of some few companies. I think this initiative might be moved by some vested interested business people. It is our apprehension, and there is no mechanism suggested by Finance Ministry, Union Government, that how they will ensure that this GST rationalization will result into overall price reduction that will benefit the consumers. So we will be demanding in the GST Council that there should be created a mechanism so that this GST rationalization should transfer to the benefit of common people. ये हम इंश्योर करना चाहेंगे. दूसरा, हिमाचल एक हिल स्टेट है. क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वी आर द वर्स्ट, वी कैन से हिट बाय द क्लाइमेटिक चेंजेस. वी आर एक्सपीरियंसिंग क्लाउड बर्स्ट एज वेल एज हाई स्पीड ग्लेशियर मेल्टिंग. उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और उसकी वजह से आ रहा है. ये इम्पैक्ट जो है ग्लोबल जो चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसकी वजह से आ रहा है. तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म that we should be compensated to provide eco services to whole the nation as well as our neighboring countries to the global community. तो eco services का इसमें कोई mechanism नहीं है. अभी जो GST rationalization का इन्होंने propose किया है, I think there should be one more slab that red category manufacturing companies, industry, red category industry, they should have different slabs which are impacting adversely to the environment. और ये स्लैब जो है इसमें मिसिंग है, तो हम उसकी तरफ भी हम ध्यान जो है आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि वी आर स्मॉल स्टेट, सो वी शुड आल्सो बी हर्ड. वी हैव डिफरेंट कंसर्न्स. So again, I thank Mr. Krishna Bairegowda ji and all the colleague ministers from 8 states, and these concerns are definitely the other states will also share. They might not be able in a position due to some political reasons to flag their issues, but it's a concern of all the states. We are in a federal structure, and it's our duty to protect our spirit of the constitution. So it's a right move, and we will put forward our case before the GST Council. Thank you very much. कर्नाटका के रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा गौड़ा जी का, क्योंकि जब लास्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग थी थोड़े दिन पहले, तब हम सभी ने ये फैसला किया था कि हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले बैठेंगे और बैठ के इस पर चर्चा करेंगे कि रेट रैशनलाइजेशन आने के बाद स्टेटों के रेवेन्यू में क्या लॉस होगा. क्योंकि लगभग आज 8 साल हो चुके हैं देश में जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए. इन 8 साल में लगभग 27 टाइम, 8 साल में 27 टाइम जो है वो हम एक्सरसाइज कर चुके हैं एग्जम्पशन के ऊपर. 27 टाइम हम एग्जम्पशन दे चुके हैं और 15 टाइम्स हम रेट रिडक्शन कर चुके हैं. तब भी इसका मतलब लगातार देश के जितने भी राज्य हैं उनका रेवेन्यू लॉस कंटिन्यू हो रहा है. एवरी स्टेट का, चाहे वो बीजेपी के स्टेट हो चाहे अन्य पार्टी के स्टेट हो, सभी का रेवेन्यू लॉस कंटिन्यू जारी है. इसका मतलब जीएसटी सिस्टम में कहीं ना कहीं ये
उतना कामयाब नहीं है जितना वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम था। जो जीएसटी के पहले का सिस्टम राज्यों का था, वो इसका मतलब इससे ज़्यादा कारगर था, इससे ज़्यादा कामयाब था। और जीएसटी आने के बाद सभी राज्यों की पोजीशन जो है वो फाइनेंस में, चाहे वो बीजेपी के राज हो, चाहे आप गोवा की बात कर लो, महाराष्ट्र की कर लो, किसी भी राज्य की कर लो, सभी की हालात जो है पतली पड़ी है। इतनी बार अमेंडमेंट होने के बाद भी हम अपना रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा पाए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पिछले 5 साल तो हम कंपनसेशन के ऊपर डिपेंड करते रहे, पर कंपनसेशन बंद होने के बाद राज्य कहाँ पे जाएंगे। हम कॉमन मैन के पक्ष में हैं। हम आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और हम तो पहले ही आम आदमियों के पक्ष में काम करते हैं। और दूसरा, मैं चाहता हूं ये ना हो जैसे सभी मंत्रीगण ने अभी अपना ये बताया है कि ये तो नहीं हो रहा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि देश में महंगाई जो है, देश में महंगाई बढ़ रही है। आप पिछले 8-10 साल का एनालिसिस कर लीजिए, हर एक स्टेट में देश भर में महंगाई बढ़ी है और रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, उनका भी रेवेन्यू बढ़ा है, उनकी भी बैलेंस शीट बढ़ी हुई है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हम काम कर रहे। ये सोचने का विषय है। जब जीएसटी में आया था 2017 में, तो पंजाब का रेवेन्यू जो न्यूट्रल रेट था, पंजाब का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था वो 18.3 था। देश भर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पंजाब का था, और देश का कितना था 14%। अब पंजाब का कितना हो गया 12%। इसका मतलब कि लगातार लॉस जो है हर स्टेट को हो रहा है। हमारा लगभग पिछले 8 साल में 1,11,000 करोड़ का लॉस जो है वो पंजाब को हुआ है। 1,11,000 अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं का लॉस स्टेट ऑफ पंजाब का हुआ, जिसमें 60,000 जो है वो कंपनसेशन के थ्रू, कंपनसेशन सर्च के थ्रू पंजाब को मिला। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। पर इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपए का लॉस पिछले 8 साल में पंजाब की इकोनॉमी को हुआ है। इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? जब पाकिस्तान से जंग लगी तो सबसे आगे कौन खड़ा था? मिसाइलें किसके ऊपर आ रही थी, ड्रोन किसके ऊपर आ रहे थे? वो पंजाब की तरफ आ रहे थे। तो रेवेन्यू लॉस किसका हो रहा है? पंजाब का हो रहा है। कोई भी कट लगाना हो तो पंजाब को लगा दो। तो मेरा मानना है कि इसको ठीक करना होगा। हम बिल्कुल जो रेट रैशनलाइजेशन का प्रपोजल आ रहा है उसके पक्ष में है, पर लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो कॉमन मैन को जाना होना चाहिए। ये ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें घुस के अपना मुनाफा कमा लें, अपना पैसा कमा लें, और जो कॉमन मैन है उसके ऊपर महंगाई की मार और बढ़ती जाए। और यही हो रहा है पिछले लगभग 10-15 साल में यही हो रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और स्टेटों का रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है। स्टेटों का रेवेन्यू, किसी भी स्टेट का छोड़ दो, जो हम जितने स्टेट यहां बैठे इनको छोड़ दो आप एनालिसिस करने के लिए, इनका बिल्कुल किसी का एनालिसिस मत करो। जाके महाराष्ट्र का कर लो, हरियाणा का कर लो, राजस्थान का कर लो, और यूपी का कर लो। और सभी राज्यों का रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है। तो ये मैं समझता हूं देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे देश को बचाना होगा। हम बिल्कुल देश के साथ हैं, देश के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पर लेकिन जितनी भी रेट रिडक्शन हो रही है, जितनी भी रेट रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसका बेनिफिट कॉमन मैन को जाना चाहिए और महंगाई की मार कम होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने पान मसाले पे कम कर दिया तो उसके बाद कोई बड़ी कंपनी आई पान मसाले वाली, वो प्रॉफिट कमा के निकल गई, और आम आदमी को क्या फायदा हुआ भाई? तो इस सभी पे है, मैं समझता हूं खुल के चर्चा होनी चाहिए। और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं जितने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हुए थे गौड़ा जी, उन सभी को विद इन आवर उनको खत्म कर दिया गया कि आप जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दो
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हम 2 स्लैब लाते चाहते हैं। हम तो चाहते हैं 1 स्लैब ले आओ, हमें क्या, 1 ले आओ, 2 की बजाय 1 ले आओ, पर लेकिन उसका फायदा कॉमन मैन को तो हो ना। ये तो नहीं कि बहुत जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हो जाए और कॉमन मैन मर जाए। तो मैं बार बार उसी बात पे जोर दे रहा हूं कि कॉमन मैन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और स्टेट के रेवेन्यू की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और कंपनसेशन के रूप में या और कोई रूप जो मेथड है, जो कोई और मैकेनिज्म है, वो अडॉप्ट करना चाहिए ताकि स्टेटों का रेवेन्यू प्रोटेक्ट रह सके। स्टेटों की अपनी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो है वो स्टेटों की काम करती हैं, क्योंकि हम तो, पंजाब तो एग्रीकल्चर स्टेट है, पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है। पंजाब देश की फूड बॉल में, पंजाब देश की फूड बॉल में सबसे ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूट करता है। देश भर में अब तक जब से देश आजाद हुआ है, आप एनालिसिस कर लीजिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देश की फुटबॉल में पंजाब में किया है। और जब भी कभी, चाहे वो पाकिस्तान हो, जब चाइना हो, जब भी कभी उनके साथ हमारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट के लोगों की जान गई है, किन स्टेट के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, वो भी पंजाब है। तो उसमें भी पंजाब नंबर 1 में आता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं तो यही आपके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जो भी हम रेट रैशनलाइजेशन के थ्रू लेके आना चाहते हैं, 2 स्लैब लाना चाहते हैं, आप उसका स्वागत करते हैं हम उसका, पर लेकिन उसका बेनिफिट कॉमन मैन को जाए और स्टेटों का रेवेन्यू प्रोटेक्शन होना चाहिए, और जो हमें ऑलरेडी लॉस हो गया वो भी किसी न किसी रूप में स्टेटों को मिलना चाहिए, ताकि स्टेटों की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल खड़ी रहे। ये ना हो कि स्टेट आपके खत्म हो जाए। बीजेपी वाले तो बेचारे बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी को पता है कि हम फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी चली जाएगी, किसी को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, पर लेकिन वो बोलते नहीं है। गौड़ा जी बता रहे थे कि वो हमें बीच बीच में बता देते हैं, भाई हमारी आवाज आप उठा देना, हम तो बोल नहीं सकते। तो वो तो मजबूर हैं, पर लेकिन हम देश के सामने उनकी भी आवाज उठाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले स्टेट भी बुरी तरह, उनकी इकॉनमी भी तहस नहस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।